बेंगलुरु की लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मेगा जॉब फेयर 2023 का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। कई कंपनियां इस जॉब फेयर में मौजूद रहीं। इस जॉब फेयर का इफ्तिताम मुकामी एमएलए एशी श्रीनिवास और जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान ने किया। प्रोग्राम की सदारत लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नोमान खान ने किया। कई बच्चों को मौके पर ही जॉब ऑफ़र दिया गया, यानी ऑफ़र लेटर दिया गया। इससे बच्चों में काफ़ी खुशी पाई गई। न सिर्फ आटी नगर इलाका बल्कि पूरे शहर के कॉलेज से यहाँ तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया था, जिनमें कई लोगों को ऑफ़र लेटर्स मिले। ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ನಮ್ದು MLA ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ, ನಾನು ಇರಲೇಬೇಕು 11 ಗಂಟೆಗೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ನಮ್ಮ ನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಟ್ಟ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿರೋದು ನೀವು ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥ ಮೆಗಾ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ಈ ಶಾಲೆನ ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೆಗಾ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಇದನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಗೀತ ಅವರು, ಕವಿತಾ ರಾಣಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ದೇವಿಕ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ये हमारा मुल्क बड़ा महान मुल्क है और इस मुल्क से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। इसीलिए अगर पड़ोस के मुल्क हमारे मुल्क पे हमला करे तो मैं इस बात की गारंटी दूंगा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई सब मिलकर अपना हाथ एक दूसरे हाथ को देकर इस मुल्क की इंशाअल्लाह हिफाजत करें। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी क्या है? इलिटरेसी है। बच्चों में अभी वो शऊर नहीं आया कि मुझे तालीम हासिल करना है। लेकिन अगर नॉर्थ के मुकाबले में साउथ इंडिया को अगर कंपेयर किया जाए तो 74.5% यहाँ एजुकेशन बच्चों को मिला है। लेकिन जॉब के एतबार से अगर देखें, मैं अभी गूगल में सर्च करके देख रहा था तो कर्नाटक भी बहुत पीछे है। 24.5% लोगों को ही जॉब मिल रहा है। तो इसलिए अभी करीब में प्रेसिडेंसी के जो साहिबान थे वो मेरे पास आए, कहने लगे कि हम सब के लिए जॉब दिलाने के लिए एक मेगा जॉब ऑफ़र करेंगे। तो इसी तरह यहाँ मेरे भाई डॉक्टर मंजूर नोमान साहब ने भी यहाँ जॉब मेला करके यहाँ क्या मुसलमान क्या हिंदू जो भी मुस्तहक है उसको जॉब के लिए ऑफ़र इन्होंने किया है। इस पर मैं सलाम करता हूँ, इसी वजह से मैं आया हूँ। जिन जिन लोगों ने भी ये काम किया है सब मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह सबको अच्छा रखे। नम्मा एसी ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ MLA ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಸೀದ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಆವಾಗ ತಾವು ಹೇಳಿದರು, ನಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2,
ಹೆಲ್ತ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ 1-2 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದರೆ ಆಚೆನಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ AC ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಸಾಹೇಬ್ MLAಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. आपको जो जॉब ऑफर मिला है, क्या कहेंगे? पहली बार ही आपको पहले अटेम्प्ट में मिल गया जॉब? क्या जॉब है? क्या जॉब सेल्स का है, एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड है ना, तो उसके लिए MBA का कोर्सेज के लिए कॉल्स करना है. अच्छी है, नाइट शिफ्ट भी नहीं है क्या अभी, और एक ही शिफ्ट है 9 to 5 o'clock, जो गर्ल्स को बहुत सेफ है, बहुत अच्छा दिखा. जॉब ऑफर लेटर भी बहुत अच्छी है. 17 to 20 पैकेज का मिला मुझे. 1 ईयर के बाद फिर एक्सटेंड भी करती, इंसेंटिव्स भी हैं उसके साथ. हमें जैसा वर्क करती है उनको वैसा मिलता है. कौन सी कंपनी है? किंगस्टर एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड. क्या काम होता है इसमें? सेल्स. अच्छा, कहाँ से हैं प्रॉपर? आटी नगर. इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं वृंदावन कॉलेज की स्टूडेंट. ನನಗೆ ಮುತ್ತೂಟ್ ಫಿನ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ. 18,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್. ಈ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ? ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ? ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕಾಲೇಜ್, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ MCOM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. जॉब फेयर जो है, बहुत सारे जॉब फेयर्स होते हैं, आए दिन होते रहते हैं. आपके जॉब फेयर में क्या खास है? हमारे पास ये जो आपने जो सवाल किया वहाँ होते रहते हैं, और इसमें उसमें क्या फ़र्क है. सबसे पहले ये कि हमने ट्रेनिंग दी थी, हमारे स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग दी, और क़ुर्ब जवार के प्लेसमेंट्स ऑफिसर्स जो हैं उनको मदऊ करके स्पेशल ट्रेनिंग दी कि रेज्यूमे किस तरह तैयार करना है. 2-4 फॉर्मेट्स हैं रेज्यूमे के, हमने उसे सर्कुलेट किया था. और दूसरी खुसूसियत ये है कि यूँ तो तलबा को मालूम नहीं होता कि जॉब फेयर में किस तरह के सवालात होते हैं और कंपनियां क्या चाहती हैं, जो कंपनियों की जानिब से तकाज़े क्या होते हैं, ये उनको मालूम नहीं होता. हमने बुनियादी तौर पर उसकी ताल्लुक़ से मालूमात फराहम की, और हमने भी और कर्नाटका गवर्नमेंट की जानिब से जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है बेंगलुरु केंद्र, वहाँ से जगन्नाथ सर एडिशनल डायरेक्टर, और फिर विजया मैडम वहाँ की एक ऑफिसर, वो उन्होंने आके स्पेशल ट्रेनिंग दी. और ख़ासकर हमारे प्लेसमेंट्स ऑफिसर ने भी इस सिलसिले में बहुत मेहनत की, और तलबा ने बहुत सारे सवालात किए, इश्कालात किए. उनके जो डाउट्स थे बहुत ही इत्मीनान बख्श जवाबात के ज़रिए उनके डाउट्स पूरे किए गए और उनके क्लैरिफिकेशंस किए गए. तो दूसरे जॉब मेलों में और हमारे जॉब मेलों में ये है. और एक और बात खुसूसियत रखती है इसकी कि हमारा नज़रिया ये है कि जो तलबा आते हैं वो सिर्फ बायोडाटा देख के ना चला जाएं, उनको कुछ ना कुछ हासिल हो. तो हमने कंपनियों से शर्त रखी थी, और इसी शर्त पर हमने उनको दावत दी है. तो ये आप देख रहे हैं कि अभी 1-2-4 बच्चियों ने हमें आके ऑफ़र लेटर्स दिखाए, तो स्पॉट पर उनको जॉब मिल रहा. तो ये खुसूसियत है हमारी. तो वो इत्मीनान बख्श भी जॉब मिल रहे हैं. और बहुत सारे जो मुझे फ़ोन कॉल्स आए थे गुलबर्गा से, और कल ही डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब ने भी फ़ोन किया था कि यहाँ दावनगिरी से भी कुछ लोग आना चाहते हैं, गुलबर्गा से भी कुछ लोग आना चाहते हैं. दूसरे लोगों ने भी फ़ोन किए थे, तो वहाँ से भी यहाँ पहुँचे हैं. और उनका ये तकाजा था कि IT कंपनीज़ आपके पास आ रहे हैं क्या. हाँ, हमने उनको भी मदऊ किया है, कंप्यूटर लैब में है और बिज़नेस लैब में उसका इंतज़ाम किया है. आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि किस तरह वो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं. 2-3 राउंड्स वो इंटरव्यू लेने के बाद उनको सेलेक्ट करेंगे और ऑफ़र लेटर देंगे. तो यहाँ इत्मीनान बख्श ये सिलसिला चल रहा है. इस तरह का जो जॉब फेयर है क्या दोबारा भी होगा, जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए?
नहीं, ये दोबारा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए कि बार बार करना आसान नहीं है। अब इम्तिहानात सामने हैं, अगले जो तालीमी साल है उस वक्त हम इसका इंतखाब करेंगे। हालांकि इससे पहले सब में हमने एक मिनी जॉब फेयर का इंतज़ाम किया था। उसमें हमने देखा कि चंद कंपनीज आए और सिर्फ डेटा कलेक्शन करके लेके गए, थोड़े ही तलबा को ऑफर लेटर्स पेश किए। इसकी बुनियाद पर हमने यहाँ शर्तें रखी थी, तो हम बहुत हद तक कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। शाम तक हमें इसकी इत्तला मिल जाएगी कि कितने बच्चों को जॉब मिला। कितने कंपनियां हैं? यहाँ अभी 25 से ज़ायद कंपनियाँ हैं और भी दोपहर में चंद कंपनियाँ आएंगी, तो इत्मीनान बख्श काम चल रहा है। अगर किसी को और भी अच्छे अच्छे जॉब चाहिए तो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिसर्स हैं उनसे डायरेक्ट आप राब्ता करके बैडरा दे के, वो जो कंपनियां नहीं आई हैं यहाँ पर उनसे वो राब्ता करके आप लिंक करवाएंगे और जॉब दिलवाएंगे। शुक्रिया।